Good morning, students. How are you all? Today we are going to start the new topic India's extent. Extent means the area, the spread. कि एरिया कितना फैला हुआ है इंडिया का, इंडिया कहाँ से लेकर कहाँ तक उसकी बाउंड्रीज हैं. ओके, सो द एरिया of India. It means India's extent. We all know that India is a vast country. Its mainland extend between 8 degree 4 north and 37 degree 6 north latitude. The north and south extent of the mainland of India is about 3214 kilometer. Located at 6 degree 14 northern latitude. The longitude extent of India is between 68 degree 7 east to 97 degree 25 east. Thus, its longitudinal extent is 29 degree. The east to west extent of country is about 2933 kilometer. Is it clear? कुछ आपको समझ आया? What is that? Let's do it on the map. Here is the map. It is the map of India with longitude and latitude. Firstly, you can see here the grid. Grid क्या होता है? ये lines है ना? We have imagined the longitude and latitude on the globe to locate an area. We all know that. Right? So this is the map with longitude and latitude to understand the extent of India. So let's see here at the end. जो सबसे नीचे का एरिया है, that is started at 8 degree 4 north. We all know that कि जो इंडिया है वो इक्वेटर से ऊपर है. ओके, इक्वेटर से ऊपर 8 डिग्री पर. Here is the 8 degree north latitude. Very good. ठीक है, it is 8 degree north latitude and India started just the above 8 degree 4 north से start होता है इंडिया का जो साउथ पॉइंट है and it ends जो अपर पॉइंट है इंडिया का that is 37 degree 6 north. ओके, जो नॉर्दर्न पॉइंट है. क्लियर? साउथ की जो टिप है दैट इज 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड जो टिप है नॉर्थ साइड की दैट इज 37 डिग्री 6 नॉर्थ. ओके, we all know that Andaman Nicobar Islands are the part of India and उनका जो एरिया है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 6 डिग्री 4 से. कहाँ से?
6 degree 4 north. Okay, India's mainland started from 8 degree 4, but ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 6 डिग्री 4 से. ओके, तो इंडिया का जो लैंड है वो 6 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक है. सो द लेंथ इज 3214. यू कैन लर्न इट इजीली कि 1 2 3 हम रिवर्स में लिखेंगे एंड लास्ट में 4. ठीक है, 3214 किलोमीटर इसकी लेंथ. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द विड्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अब वेस्ट में हमें क्या देखना है? नाउ वी आर सर्चिंग फॉर द लॉन्गिट्यूड. यहाँ हमने लैटिट्यूड्स को चेक किया था, अब यहाँ हम लॉन्गिट्यूड की पोजीशन चेक करेंगे. तो ये लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 नॉर्थ. ठीक है, जो वेस्टर्न टिप है वो 68 डिग्री 7 नॉर्थ पर है. ओके, एंड ईस्टर्न टिप जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, ईस्टर्न एंड जो है हमारा, दैट इज एट 97 डिग्री 25 नॉर्थ. ओके, western starts from 68 degree 7 and eastern end is at 97 degree 25 north. और ये टोटल कितनी लेंथ बनती है? इट इज 2933 किलोमीटर. ओके, क्लियर? So this is about the extent. Okay, east to west, it is from west to east, 68 degree 7 to 97 degree 25, and south to north is 8 degree 7 to 37 degree 6. ओके, एंड लेंथ जो हमारी बनती है दैट इज 3214 किलोमीटर और विड्थ में 2933 किलोमीटर. ओके, क्लियर? यस, वेरी गुड. The southernmost tip of the mainland is Kanyakumari. Underline that. अभी हमने जो लास्ट टिप दिखाई थी that starts from 8 degree 4 north. तो ये कहाँ से है? कन्याकुमारी. ये मेनलैंड है इंडिया का. ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज केप कोमोरियन. ओके, बट देयर आर अंडमान निकोबार आइलैंड्स that are the part of our country and they lies in the Bay of Bengal. Okay, and Lakshadweep lies in the Arabian Sea. Right? Here we can see कि लक्षद्वीप अरेबियन सी में है और अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है ना? They form parts of Indian Union. They are the part of Indian Union. And Indira Point, here you can see Indira Point is written in your map. Indira Point is the southernmost tip of Indian territory. ये मेनलैंड की टिप नहीं है, मेनलैंड की टिप यहाँ पर ही है, कन्याकुमारी. ओके, तो मेनलैंड से अलग भी हमारे पास आइलैंड्स हैं इंडिया के पार्ट में. तो वो आइलैंड्स का सबसे लास्ट पार्ट दैट इज इंदिरा पॉइंट, बट वो हमारी कंट्री का ही एक पार्ट है. सो इट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन टेरिटरी. ओके, एंड इट लाइज इन निकोबार आइलैंड. ये निकोबार आइलैंड का पार्ट है, इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड इंदिरा
point. Clear? But now it is submerged in the sea. ये जो इंदिरा पॉइंट था, ये आइलैंड था, तो ये अब सी में सबमर्ज हो चुका है. सुनामी आई थी, आप लोगों ने सुना होगा. ठीक है, तो सुनामी के कारण नाउ इट इज जस्ट सबमर्ज्ड इन द सी. ओके, ओके. तो इंदिरा पॉइंट जो है वो हमारी यूनियन टेरिटरी का लास्ट सदर्न मोस्ट टिप है. द सन राइजेज इन अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश इज इन ईस्ट. ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है और सनराइज कहाँ करता है? ईस्ट में. ओके, तो सन राइजेज इन अरुणाचल प्रदेश, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. इट राइजेज इन गुजरात in the west after 2 hours. यहाँ से सन को अपनी जर्नी कंप्लीट करने में, गुजरात तक आने में कितना टाइम लगता है? 2 hours. How many longitudes from west to east? These are total 29 longitudes. How many longitudes? टोटल 29 लॉन्गिट्यूड्स हैं यहाँ पर इंडिया में. ओके, एंड द ईस्टर्न मोस्ट इज एट 97 डिग्री. ओके, 97 डिग्री 25 ईस्ट. राइट, सो देयर आर 29. वी हैव रेड ऑल्सो. तो हमने ये रीड किया था कि सनलाइट को हर लैटिट्यूड को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है? 4 minutes. सो वी विल मल्टीप्लाई 4 into 29, दैट इज 111. एम आई राइट? 111. तो 1 hour में 60 minutes, 2 hours में 120 minutes. So it takes 2 hours to cross this distance. अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक के डिस्टेंस को क्रॉस करने में सन को नियर अबाउट 2 hours लग जाते हैं. ओके, क्लियर? तो अगर यहाँ पर सन अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock राइज कर रहा है तो गुजरात में वो 7 o'clock राइज करेगा. ठीक है, तो इट टेक्स 2 hours. क्लियर? ईच लॉन्गिट्यूड हैड इट्स ऑन लोकल टाइम, दैट वी हैव रेड ऑल्सो, कि हर लॉन्गिट्यूड का अपना एक टाइम होता है. तो इसके लिए इंडिया में क्या सिलेक्ट किया टाइम? 82 डिग्री 30 ईस्ट. इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन सिलेक्ट किया. 82 डिग्री 30 ईस्ट. ठीक है, नियर अबाउट हेयर, यहाँ पर ये यूपी में 68 और 97 के सेंटर में ही यहाँ इस लॉन्गिट्यूड को हमने अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन सिलेक्ट किया टू मैनेज आवर लोकल टाइम, हमारे इंडिया के टाइम को मैनेज करने के लिए. ओके, एंड दिस स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है दैट इज फॉलोड इन द होल इंडिया एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसी का टाइम हमारी पूरी कंट्री में फॉलो किया जाता है. ओके, एंड दैट टाइम इज 5.5 hours ahead of ग्रीनविच मेन टाइम. अब ग्रीनविच जो है दैट इज इन द वेस्ट और हम कहाँ पर हैं? ईस्ट में. तो हमारा टाइम ग्रीनविच मेन टाइम से
5 hour 30 minutes फॉरवर्ड है, आगे है। तो अगर ग्रीनविच मीन टाइम पर इफ देयर इज 12 o'clock, then in our country it is 5:30 AM or PM, whatever. Clear? From Jammu and Kashmir to Kanyakumari, India experiences a wide variety of climate condition, natural vegetation, soil, etc. हमारा इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इट इज़ अ वास्ट कंट्री एंड इट हैज़ डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस। तो जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ इंडिया तक, कन्याकुमारी तक बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल चेंजेस हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ वी हैव, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन वी हैव, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल वी हैव। ओके, सो वी हैव different or the varieties of climatic condition, natural vegetation and soil. Okay, one more thing, we all know that Tropic of Cancer moves through a country and it divides the country into two parts. तो ये कौन से states में से move करती है? Here you can see it moves from firstly Gujarat, then some part from the Rajasthan also, then Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal, okay, Tripura and Mizoram. So how many states? Just count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura and Mizoram. These are the states from which Tropic of Cancer moves. Okay, and here we can see the standard meridian. यहाँ पर हम standard meridian देख रहे हैं, that is 82 degree 30 east. It is in Uttar Pradesh and it is called Mirzapur. Okay, so this point is the standard meridian of our country. Clear? और यही standard meridian का ही जो टाइम है वो पूरी कंट्री में हम फॉलो करते हैं। Clear? Okay, very good. I hope आपको ये समझ आया होगा and if you have any problem you can ask. Thank you and have a nice day.